So today, here in this video, we are talking about the digestive system of earthworm. Okay, and when we discuss the digestive system of earthworm, before getting into the main notes, main characteristics, main parts, I want to finish the physiology, or you can say the mechanisms that occur inside this alimentary canal of earthworm. We know we are discussing earthworm. Earthworm is an annelid, and in annelid they have a complete digestive system. We have studied about this in animal kingdom. When you say a complete digestive system, that means there is a mouth, distinct mouth and a distinct anus present. Okay, and from that mouth they do food ingestion, and from the anus they do egestion, yeah, defecation. That means they give out a fecal matter, is not it? So removal of fecal matter or taking out the fecal matter, that process is called as defecation or egestion. Okay, so that is what we know from complete digestive system. Now we will see that how this earthworm eats food. Okay, this is just a basic discussion. After that, some important point wise I will give you the mechanism of digestive system. So here you will have to understand how their digestive system works. Okay, remaining characters I will give, but the mechanism, the working of digestive system, you will have to write the notes yourself by understanding the lecture. Okay, so we know that earthworm lives in a soil which has a high organic content. Okay, or a soil which has a very high organic matter present. Okay, that type of soil is called as humus, that we have already discussed in the previous video. So this particular organism, it likes to live in humus and it likes to live in burrows. Now when this animal digs a burrow, how does it dig it? I told you when it will dig, it will open up the prostomium, it will rush the coelomic fluid into prostomium, it will make prostomium very steady, very rigid, and with the help of that prostomium it will dig, and because prostomium is open, the soil will directly keep on going inside the mouth of an earthworm. Suppose this hand is a earthworm. Here you have a mouth, here you have a mouth, and this is the lid that covers the closing and opening of the mouth. Imagine a mouth over here. So by making prostomium erect, when it will dig, the soil is directly going inside the mouth or not? So it is eating the humus soil. Okay, so here you can see I have made a structure of the digestive system of earthworm. Mouth with prostomium. Okay, through the mouth, okay, not prostomium, but through the mouth it ingests what? It ingests humus soil. Is not it? It ingests that soil which has a high organic content. Now that soil, humus soil, will move from its mouth to pharynx. Okay, from pharynx it will move to esophagus. This is esophagus. From esophagus, that humus will enter into a chamber which is called as gizzard. And about gizzard we have also studied in eggs. Gizzard is a highly muscular chamber which helps in grinding of the food. Okay, the organism, those who lack teeth, they have gizzard in them. For example, birds, they have a beak, they do not have a teeth, so they will have a gizzard in them. We as a mammal, we have teeth in order to grind or masticate the food. So when we are masticating the food already in our mouth, why do we need a additional chamber in our alimentary canal in order to grind the food? We are already doing it in the mouth, hence we do not have a gizzard. But the animals, those who lack teeth in their mouth, they generally have gizzard present, and gizzard is a muscular chamber which grinds the food. And what is their food? Humus. So यहाँ पे मैंने लिखा it grinds the humus. So जैसे जैसे फूड ऐसे मूव करते हुए कहाँ पहुंचेगा? गिजार्ड में पहुंचेगा. गिजार्ड क्या करेगा? इट विल ग्राइंड द ह्यूमस एंड देन इट विल पास द ह्यूमस टू द नेक्स्ट चेंबर व्हिच इज कॉल्ड एज स्टोमक. नाउ दैट ग्राइंडेड ह्यूमस, व्हेनेवर इट रीचेस द स्टोमक, स्टोमक का इनर वॉल जो है, अंदर का जो वॉल है, वहां पे प्रेजेंट है एक ग्लैंड जिसका नाम है क्या? कैल्सीफेरस ग्लैंड. सो इनर वॉल ऑफ स्टोमक हैज ए ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड एज कैल्सीफेरस ग्लैंड. दिस कैल्सीफेरस ग्लैंड gives some chalky secretion, whitish kind of some secretion. ठीक है, dusky white, not complete white, dusky white type of एक secretion देगा, chalky secretion. ठीक है, that neutralizes the humic acid present on the humus. So जो humus इसने खाया है, ingest किया है, उस humus में कुछ acids present होगा. क्यों? क्योंकि जो ह्यूमस सॉइल है, उस ह्यूमस सॉइल में बैक्टीरिया वगैरह भी प्रेजेंट होगा, और वो बैक्टीरिया क्या करेगा? वो जो सॉइल में ऑर्गेनिक फूड है, उस ऑर्गेनिक फूड के ऊपर वो बैक्टीरिया एक्ट कर रहा है,
बैक्टीरिया भी उस ऑर्गेनिक फूड को खाने का कोशिश कर रहा है, तब कुछ एसिड्स इस सॉइल में ऐड हो रहा है, एंड उन एसिड्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, ह्यूमिक एसिड। सो ह्यूमिक एसिड इज फॉर्म और इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल बिकॉज उस सॉइल में बैक्टीरिया इज देयर विच इज ट्राइंग टू डू व्हाट, विच इज ट्राइंग टू also eat the organic matter present in that soil. So in order to eat that organic matter from the soil, bacteria adds or bacteria does some kind of digestive activity, and in that digestive activity some acids are formed in that soil which is called as humic acid. So this acid can be harmful for the inner wall of the alimentary canal. Hence what has been done, stomach has made an adaptation. Stomach thinks that whenever this humic acid will enter inside the intestine, this acid may destroy the inner cells of the intestine. Okay, this acid may destroy the inner cell of the intestine. Hence स्टोमक का इनर वॉल में स्टोमक ने क्या किया है, कैल्सिफेरस ग्लैंड को डेवलप किया है, जो यहाँ पे फूड को पहुंचते ही ग्राइंडेड ह्यूमस गिजर्ट से जैसे यहाँ पे आएगा, this calciferous gland will release some chalky secretion and that will neutralize the humic acid in the stomach itself. So in the stomach, the humic acid of the humus is neutralized by the secretion of calciferous gland. After that neutralization, the grinded humus will be passed into this section from here till the last segment. Okay, from 15th, this portion starts from the 15th segment. We know that arthome has 120 segments. So from this segment, that means 15th segment till the last, that means till 120th segment. क्योंकि 120th segment में होगा एनस complete digestive system. तो 120th segment तक, 15 से लेके 120th segment तक ये है intestine. देखो यहाँ पे लिख के रखा है, intestines are known for doing what? Digestion as well as absorption. ठीक है, ये जो इंटेस्टाइन शुरू हुआ है, इस इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है, अंदर का जो वॉल है, इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हैज ग्लैंडुलर सेल. दो तरीके का सेल होगा, एक है ग्लैंडुलर सेल दैट रिलीजेस मेनी एंजाइम्स. वो एंजाइम्स क्या करेगा, इस यहाँ पे जो ह्यूमिक एसिड न्यूट्रलाइज ग्राइंडेड ह्यूमिक एसिड ग्राइंडेड बाय दिस न्यूट्रलाइज बाय स्टोमक, न्यूट्रलाइज ग्राइंडेड ह्यूमिक एसिड जैसे ही कहाँ पे पहुंचेगा, इंटेस्टाइन पे पहुंचेगा. इंटेस्टाइन का इनर वॉल में दो सेल प्रेजेंट है, एक सेल एंजाइम छोड़ता है जो फूड को ब्रेक कर देगा, एंड दूसरा है एब्जॉर्प्टिव सेल, वो ब्रोकन फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा. समझ में आया कि नहीं? हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर में दो सेल पढ़ा है, एक हम लोगों ने पढ़ा है ग्लैंडुलर सेल जो सिक्रेशन देता है, एक पढ़ा है हम लोगों ने ब्रांच बॉर्डर सेल जो एब्जॉर्ब करता है. इस इनर लाइनिंग में एक टकला सेल है दैट इज ग्लैंडुलर सेल जो एंजाइम सीक्रेट करता है, जो इस ह्यूमस से ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा. एंड इसके अंदर प्रेजेंट है ब्रांच बॉर्डर सेल जो है एब्जॉर्प्टिव सेल, जो क्या करेगा, वो ब्रोकन फूड को एब्जॉर्ब करके बॉडी में ले आएगा. ओके, अदर देन दिस इंटेस्टाइन में कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जो ग्राइंडेड न्यूट्रलाइज ह्यूमस यहाँ पहुंचेगा, इंटेस्टाइन का इनर सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम देके उसको ब्रेक डाउन करेगा, एब्जॉर्प्टिव सेल एब्जॉर्ब करेगा. फूड यहाँ से मूव करते जाएगा, ब्रेक डाउन, एंजाइम रिलीज होते जाएगा, ब्रेक डाउन होते जाएगा, एब्जॉर्ब होते जाएगा, एनास पहुंचेगा, एनास से फिर निकल जाएगा. वो है इसका फीकल मैटर. जितना ये सॉइल बेसिकली क्या कर रहा है, माउथ से घुस रहा है और एनास से ये सॉइल निकल रहा है, और ये सॉइल अपने साथ लेके आ रहा है कुछ ऑर्गेनिक मैटर जिसको इंटेस्टाइन में हम लोग ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जो अमाउंट ऑफ सॉइल एनास से निकल जाएगा उससे हम लोगों ने ऑलरेडी डाइजेशन करके उससे एब्जॉर्ब हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स कर लिया है. ठीक है, तो ये सॉइल का एक कंटिन्यूअस फ्लो है, रास्ता में उसको ब्रेक डाउन करके हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इट इज लाइक दैट. इंटेस्टाइन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जानना पड़ेगा, जैसे कि ये जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन का ये जो दो निकला है, इनको हम लोग हेपाटिक सिका बुलाते हैं. एंड हेपाटिक सिका हमको पता है 15 सेगमेंट से लेके 120 तक क्या है, इंटेस्टिनल रीजन. 26 सेगमेंट जहां पे भी गिरेगा, 26 सेगमेंट जहां पे भी गिरता है, उस 26 सेगमेंट से पीछे के तरफ दो प्रोजेक्शंस निकलता है ऐसा. तो ये 26 सेगमेंट है, ये पीछे की तरफ निकलता है तो 3-4 सेगमेंट पार कर जाता है. तो 26 से ये अराइज हुआ, ठीक है, लेकिन ये 25, 24, 23 तक रन करता है क्योंकि ये रिवर्स में रन करता है. समझ में आया ना? तो इट अराइजेस फ्रॉम 26 बट इट रन्स टिल 23rd. तो कभी कभी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये पीछे की तरफ कैसे जा रहा है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है. ये जो हेपाटिक सिका है, इसके अंदर प्रेजेंट है कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया. वो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को यहाँ से जो ह्यूमस पास हो रहा है, उस ह्यूमस से वो खाना खाता है, और इन रिटर्न वो यहाँ पे जो ह्यूमस है, उस ह्यूमस में अगर कोई घास फूस है, घास फूस दैट इज सेलुलोज बेस्ड फूड है, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम छोड़ता है, छोड़ के खुद भी खाता है
और हमारा जो एब्जॉर्प्टिव सेल है वो भी एब्जॉर्ब कर सकता है। बात यह है कि एनिमल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं रहता है। घास वगैरह में, पत्ता, रॉ लीफ वगैरह में सेलुलोज होता है। आज हम लोग अगर घास खाते तो हम लोगों को बॉयल करके खाना पड़ेगा, क्योंकि बॉयल करेंगे, हीट देंगे तो सेलुलोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होकर उसका स्टार्च बन जाएगा। स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर है, लेकिन सेलुलोज को डायरेक्ट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग खाना बॉयल करके खाते हैं। आज अगर हम लोग खाली खाली घास खा लेंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। खाली घास खाएंगे तो घास में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जिसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम हमारे में नहीं होता है, एनिमल्स में जनरली नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग सोच सकते हो कि सर काऊ फिर कैसे, काऊ का भी एलिमेंट्री कैनल के अंदर कुछ, जो भी एनिमल घास डायरेक्टली खाता है या जो भी एनिमल लीव्स डायरेक्टली खा रहा है, हार्बिवोरस एनिमल, उन सबके इंटेस्टाइन के अंदर देयर इज प्रेजेंट अ बैक्टीरिया जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सिमिलरली इसका जो अंदर का ये ग्लैंडुलर सेल है वो बहुत सारा एंजाइम रिलीज कर रहा है, लेकिन सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम वो रिलीज नहीं कर सकता है। इसलिए उसने क्या किया, उसका भी जुगाड़ लगाया है ना, क्योंकि ह्यूमस में घास फूस तो हो ही सकता है। अभी वो घास का जो टुकड़ा है उसको मैं डाइजेस्ट क्यों ना करूं, है ना, मैं उसको छोड़ क्यों दूं। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने इंटेस्टाइन में इस तरीके का दो प्रोजेक्शन बनाया है, which we call them as hepatic cica, and inside them it has kept some bacteria। वो बैक्टीरिया को यहाँ का से जो ह्यूमस पास होगा उससे न्यूट्रिशन मिलेगा, एंड बैक्टीरिया इन रिटर्न इस ह्यूमस में जो भी सेलुलोज बेस्ड फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा। ब्रेक डाउन करके बैक्टीरिया खुद भी खाएगा और उस ब्रेक डाउन से हमारा एब्जॉर्प्टिव सेल, समझ में आया, कुछ कुछ एब्जॉर्ब भी कर पाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, फ्रॉम 26 सेगमेंट अराइजेस इंटेस्टिनल सिकम, इनसाइड इंटेस्टिनल सिकम रिसाइड सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया भी लिख सकते हो, क्योंकि सेलुलोज डाइजेस्ट करने में सेलुलोलाइटिक, CELLULYTIC से नहीं, सेलुलोलाइटिक, सेलुलो माने सेलुलोज, लाइटिक माने ब्रेकडाउन, सेलुलोज ब्रेकडाउन करने वाला बैक्टीरिया, तो सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया लिख सकते हो यहाँ पे स्लैश देके, सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, अच्छा, कुछ कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, 2 पेयर्स माने 2 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिनको हम लोग क्या बुलाते हैं, लिम्ब ग्लैंड्स। ये लोग क्या फॉर्म करता है, फेगोसाइट्स, दैट मींस दीज आर दोज सेल्स जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ये भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर में डिस्कस किया है, ठीक है, मैक्रोफेजेस, फेगोसाइट्स, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो लिम्ब ग्लैंड कुछ सेल्स बनाएगा जिसका नाम है फेगोसाइट्स, और बना के ब्लड में छोड़ेगा। ये फेगोसाइट्स जो है ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ये बॉडी को बैक्टीरिया वगैरह से लड़ने में मदद करेगा। ठीक है, एंड फ्रॉम ये जो 26 थे जहां से ये हेपाटिक सिका निकला है, 26 से 95 सेगमेंट तक, 15 से लेके 120 सेगमेंट तक इंटेस्टाइन, उस इंटेस्टाइन का 26 से लेके 95 सेगमेंट तक एक रीजन है जिसको हम लोग टाइफ्लोसोल रीजन बुलाते हैं। हेंस ये जो इंटेस्टाइन है जो 15 से स्टार्ट होता है एंड 120 तक रन करता है, ये इंटेस्टाइन 3 हिस्सा में डिवाइडेड है। 15 से लेके 26 प्री टाइफ्लोसोलर रीजन, जैसा हम लोगों ने क्लाइटेलम में किया था, जस्ट लाइक दैट। 15 से 26 प्री टाइफ्लोसोलर रीजन, 26 से 95 टाइफ्लोसोलर रीजन, 95 से 120 पोस्ट टाइफ्लोसोलर रीजन। अब ये टाइफ्लोसोल क्या है इसको मैं आगे बताऊंगा। ये इंटेस्टाइन में एक रीजन ऐसा है, 15 से लेके 120 तक इंटेस्टाइन, लेकिन 15 से लेके 120 तक इंटेस्टाइन में 26 से लेके 95 तक सेगमेंट के अंदर जो इंटेस्टाइन का पोर्शन गिरता है उसको हम लोग टाइफ्लोसोलर रीजन बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, क्या है टाइफ्लोसोलर रीजन, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन 26 से 95 को टाइफ्लोसोलर रीजन बुलाने के वजह से इंटेस्टाइन 3 हिस्सा में डिवाइड हो जाता है। 15 सेगमेंट से 26 सेगमेंट के अंदर का जो इंटेस्टाइन है प्री टाइफ्लोसोलर, 26 से 95 टाइफ्लोसोलर, 95 से 120 पोस्ट टाइफ्लोसोलर। ठीक है, तो इंटेस्टाइन का काम बस यही है, जैसे ही ग्राइंडेड न्यूट्रलाइज्ड ह्यूमस यहाँ पे पहुंचेगा तो इंटेस्टिनल वॉल के अंदर का जो सेल है वो सेल एंजाइम्स छोड़ेगा, ह्यूमस का ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करेगा, एंड इसी के साथ का जो एब्जॉर्प्टिव सेल है वो उस ह्यूमस से ब्रोकन फूड्स को एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी के लिए। जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा प्लस सॉइल, ये सब क्या हो जाएगा, एनस से निकल जाएगा, वो है इनका फिकल मैटर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज वर्म कास्टिंग्स। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का फिनोमिनन। इसको अभी अच्छे से मैकेनिज्म बना के तुम लोगों को लिखना है।
ठीक है, तो मैकेनिज्म और मैं नहीं दूंगा, मैकेनिज्म इस वीडियो से समझना है एंड खुद से लिखना है. यू विल हैव टू कंसंट्रेट व्हेन आई एम गिविंग द लेक्चर, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द मैकेनिज्म. Now I will talk about some general characteristics of this digestive system. First I wanted to discuss the mechanism, so I did it. Now I will discuss some basic mechanism of the digestive system. Then let's see what falls ahead. So यहाँ पे देखने का कि हमने क्या किया है, कुछ इंफॉर्मेशनल पॉइंट्स डाला है, जैसे कि या अभी मेंशन किया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आर्थवॉर्म, लेकिन तुम लोग पहले ही मेंशन कर देना वो डायग्राम ड्रॉ करने से पहले. अच्छा, आर्थवॉर्म फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग लीव्स अलोंग विद द सॉइल, जिसको आप उन लोग ह्यूमस बुलाते हैं. ठीक है, तो ये तो पता है, माउथ से खाएगा. माउथ लाइज एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट. हम लोगों ने देखा है जो फर्स्ट सेगमेंट है आर्थवॉर्म का, अगर ये आर्थवॉर्म का फर्स्ट सेगमेंट है, फर्स्ट, तो माउथ फर्स्ट सेगमेंट के एकदम एंटीरियर पार्ट में है, which is guarded by प्रोस्टोमियम, एंड फर्स्ट सेगमेंट को हम लोग पेरिस्टोमियम बुलाते हैं. ये हम लोगों ने पहला लेक्चर में या आर्थवॉर्म का पहला वीडियो में देखा है. बकल कैविटी लाइज फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट. फर्स्ट से लेके इसका बॉडी जैसे ही इलोंगेट होते जाएगा, बॉडी में सेगमेंट्स बढ़ते जाएगा, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके आते जाएगा टिल 120. तो एलिमेंट्री कैनल तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है ना. तो वो बकल कैविटी माने माउथ का जो रीजन है वो फर्स्ट से लेके थर्ड सेगमेंट का मिडिल तक रन करता है. ठीक है ना, माउथ का अंदर का जगह. माउथ लीड्स टू फेरिंग्स, हम लोगों ने डायग्राम में देखा. फेरिंग्स एक पियर शेप से एक है, मिडिल ऑफ द थर्ड, क्योंकि थर्ड के मिडिल तक तो यही है, मिडिल ऑफ द थर्ड से लेके एंड ऑफ फोर्थ तक फेरिंग्स है. ठीक है, सेगमेंट्स, कभी कभी सेगमेंट से क्वेश्चन आता है. ओसोफेगस फिफ्थ से लेके सेवेंथ, फोर्थ पे खत्म हो जाएगा. फिफ्थ का स्टार्टिंग से लेके सेवेंथ का एंड तक. अगर हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख देते 5 to 7, इसका कोई मतलब, इसमें कोई ऐसा लोचा नहीं है, यहाँ का मिडिल वहाँ का मिडिल, ये मतलब 5th का स्टार्टिंग से लेके 7 का एंड तक ओसोफेगस है. गिजार्ड ओवल हार्ड थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन, जो ग्राइंडिंग करता है 8th से लेके 9th. ठीक है, 8th से लेके 9th तक ये गिजार्ड है. स्टोमक 9 को खत्म होगा. ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे यहाँ पे हम लोग 9th मिडिल लिखना पड़ेगा. ये 9th के मिडिल तक है, ये 9 मिडिल टू 14th लास्ट. ठीक है, 14 सेगमेंट के लास्ट तक स्टोमक. स्टोमक क्या करता है, कैल्सिफेरस ग्लैंड वगैरह वी नो. इंटेस्टाइन 15 से लेके लास्ट सेगमेंट तक. ठीक है, लास्ट सेगमेंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मे बी 120. ठीक है, अभी ये इंटेस्टाइन के अंदर जो मैंने अभी टाइफ्लोसोलर वो बोला है उसको अभी डिस्कस करेंगे, इसका नोट बना लो. So यहाँ पे we have discussed about the typhlosorl. So from 26 to 95th, ठीक है, हमको पता है 15th से लेके 15 से लेके 120 तक इट्स इंटेस्टाइन. ठीक है, लेकिन 26 से 95 सेगमेंट के अंदर जो इंटेस्टाइन का पोर्शन है, उस इंटेस्टाइन के पोर्शन को हम लोग क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट टाइफ्लोसोल. क्यों बुलाते हैं टाइफ्लोसोल? बिकॉज ये जो रीजन है, इस रीजन में न्यूमेरस हाई मीडियन फोल्ड्स ऑफ इंटेस्टिनल वॉल, माने ये जो रीजन है, इस रीजन में अगर हम लोग इंटरनली देखें तो इंटेस्टिनल वॉल में हाई फोल्ड है. ठीक है, इंटेस्टिनल वॉल में हाई फोल्ड है. मान लेते हैं ये इंटेस्टाइन है ना, तो ये मान लेते हैं 27th सेगमेंट है, तो 27th सेगमेंट विल फॉल अंडर दिस. तो 27th सेगमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, अंदर का जो इंटेस्टिनल वॉल है वो ऐसा टाइप का है, ऐसा टाइप का है. तो इंटेस्टिनल वॉल अंदर के तरफ में क्या करता है, बहुत ज्यादा फोल्डिंग प्रेजेंट होता है. तो 26 से लेके 95 तक वो जगह है जिसके अंदर का जो इपिथेलियम है, इंटरनल इंटेस्टिनल इपिथेलियम विल बियर मेनी फोल्ड्स. ओके, इट विल हैव हाई और न्यूमेरस लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोल्ड्स प्रेजेंट है. इतना ज्यादा फोल्ड्स प्रेजेंट होने के वजह से अंदर में इस तरीके का बहुत ज्यादा फोल्ड्स प्रेजेंट है. इस तरीके का फोल्ड्स प्रेजेंट होने के वजह से क्या होगा, इट क्रिएट्स मोर सरफेस एरिया. मोर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द एब्जॉर्प्टिव एंड ग्लैंडुलर सेल. ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्टिव ग्लैंडुलर सेल होगा. ग्लैंडुलर सेल ज्यादा एंजाइम छोड़ेगा तो होगा बेटर डाइजेशन. एब्जॉर्प्टिव सेल ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो होगा बेटर एब्जॉर्प्शन. सो टाइफ्लोसोलर रीजन इज दैट रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन जहां पे फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि 26 से 95 तक बहुत ज्यादा अंदर के तरफ फोल्ड्स है. मोर इज द फोल्ड, मोर विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द एपिथेलियम.
more is the surface area of the epithelium, more are the cells, more will be the digestion and absorption. जो अंदर में एब्जॉर्प्टिव सेल्स है, एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एब्जॉर्ब्स द ब्रोकन फूड, डाइजेस्टिव एंजाइम जो फूड को ब्रेक करेगा, सिंपल सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स उनको हम लोग मानते हैं, उसको एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, ये जो बीच का जगह है वो इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है ना, एंड पास इट टू द नियर बाई ब्लड वेसल। ठीक है, हमको पता है आर्थवॉर्म में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, डिस्कस हम लोगों ने ये एनेलिडा में किया है, उस ब्लड वेसल्स में पास कर दिया जाएगा। साब ओसोफेजियल वेसल बोल के एक था, हम लोगों ने एनेलिडा में डिस्कस किया है, जो एलिमेंट्री कैनल के पैरेलली रन करता है, उस साब ओसोफेजियल वेसल में ये सेल एब्जॉर्ब करके डाल देगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फूड मूव्स इन अ फ्लो, एक फ्लो में फूड मूव करता है, जैसे ही माउथ से घुसेगा, जैसे एम माने माउथ, जैसे माउथ से घुसेगा एनास तक एक ही पेस में, एक ही पैटर्न में वो फ्लो करता है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, दैट इज कॉज्ड बाय द स्मूथ मसल, एसएम मस माने स्मूथ मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल। हम लोगों को पता है, टिश्यू चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा है कि एलिमेंट्री कैनल का वॉल में स्मूथ मसल होता है, हेंस दे आर कॉल्ड एज विसरल मसल। ठीक है, ये सब हम लोगों ने वहां पे पढ़ा है। तो ये स्मूथ मसल जो मूवमेंट देता है उसको हम लोग पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, एक रिदमिक मूवमेंट जो स्टार्ट होने से एकदम एंड तक होते रहेगा। ठीक है, हम में भी है, उनमें भी है। ठीक है, और ये मूवमेंट के वजह से फूड माउथ से घुसेगा, बीच में उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होगा, एनस से फीकल मैटर निकल जाएगा, जिसको हम लोग वॉर्म कास्टिंग्स बुलाते हैं। तो इन सब चीजों को जोड़ के तुम लोगों को इसका नोट्स बनाना है। ठीक है, अच्छे से इस मैकेनिज्म को लिखना है। ठीक है, इन सब चीजों को जोड़ते हुए आई वांट टू सी दैट हाउ व्हाट टाइप ऑफ नोट्स यू मेक ऑन द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ आर्थो। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने अभी सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने एनेलिडा फाइलम में भी डिस्कस किया है, वहाँ से थोड़ा इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं वापस यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। वहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था वो आर्थवॉर्म का ही पढ़ाया था, फेरेटिमा पोस्टुमा का ही पढ़ाया था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा है, क्लोज्ड ओवरव्यू जैसा दे रहा हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम में दे हैव 4 पेयर्स ऑफ ट्यूबुलर हार्ट, 2 पेयर्स को हम लोग लेटरल हार्ट्स बुलाते हैं, जो 7th एंड 9th सेगमेंट में प्रेजेंट है। 2 पेयर्स को हम लोग लेटरल ओसोफेजियल हार्ट बुलाते हैं, जो 12th एंड 13th में प्रेजेंट है। 1 पेयर ऑफ नॉन पल्सेटाइल हार्ट भी है, जो पंपिंग नहीं करता है, बस एक वेसल से दूसरा वेसल में ट्रांसफर करने में मदद करता है। इन नॉन पल्सेटाइल हार्ट को हम लोग एंटेरियर लूप्स बुलाते हैं, जो 10th एंड 11th सेगमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये तुम लोग वीडियो अभी पॉज करके ये लिख लो, क्योंकि मैं अभी ये मिटाने वाला हूँ। क्यों मिटाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये डोर्सल एंड वेंट्रल को डिस्कस करना है थोड़ा सा, ये भी डिस्कस्ड है उधर। तो इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ ऐसा टाइप का बनाया था, ठीक है। ऊपर यहाँ पे एक लेयर ऐसे दिया था जिसको हम लोगों ने स्किन बोला, ठीक है। एंड ये जो ब्लड वेसल है इसको डोर्सल ब्लड वेसल बुलाया, इसको वेंट्रल ब्लड वेसल ऐसे बुलाया था। बीच में 2 और ब्लड वेसल है ना, 2 और ब्लड वेसल ऐसे था, साब ओसोफेजियल, साब न्यूरल, ठीक है। फिर ये साब ओसोफेजियल से भी ब्लड इसमें जाता है, साब न्यूरल से भी जाता है, वेंट्रल से भी जाता है, ठीक है। एंड ये जो डोर्सल ब्लड वेसल है उससे इस तरीके का हार्ट वेंट्रल तक कनेक्टेड है, हम लोगों ने देखा था। ये है लेटरल हार्ट्स, लेटरल हार्ट ऐसा दिखता था, एंड ऐसा कुछ दिखता था लेटरल ओसोफेजियल हार्ट, ठीक है। तो वो उधर से तुम लोग ये कनेक्ट कर जाओगे एनलिडा का वीडियो से, ठीक है। मैं पूरा डायग्राम नहीं कर रहा हूँ, बस ये दोनों ब्लड वेसल को थोड़ा समझाने के लिए ये अभी फिर से ड्रॉ किया है। जैसे कि डोर्सल ब्लड वेसल लार्जेस्ट ब्लड वेसल, याद रखना, इट हैज वेल्व्स दैट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। जब ब्लड इधर से ये सब ब्लड वेसल जब डोर्सल ब्लड वेसल को ब्लड देता है, तब डोर्सल ब्लड वेसल में द ब्लड हैज टू फ्लो in this direction so that the blood can come and it can enter inside the respective heart, ठीक है। इसलिए डोर्सल ब्लड वेसल में रेगुलर इंटरवल में इस तरीके का कुछ वेल्व्स प्रेजेंट है, और ये वेल्व क्या करता है, ब्लड एक बार पहुंचने से ये वेल्व कंप्रेस करता है, ब्लड को आगे की तरफ धक्का मारता है, सो दैट ब्लड आगे की तरफ जाए और जाके रेस्पेक्टिव हार्ट्स में घुस जाए। इसलिए डोर्सल ब्लड वेसल में वेल्व प्रेजेंट है जो बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। नहीं तो ब्लड वापस इनमें आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक डायरेक्शन मेंटेन करना पड़ेगा,
तभी जब ये हार्ट पंप करेगा तो ब्लड इधर इनमें जाएगा या इसमें आएगा, फिर वो ब्लड घूम के इसमें, अब इसका ब्लड बोले वापस रिवर्स आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. इट विल हैव टू मूव इन अ काइंड ऑफ अ सर्किट. इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेरियस कोमिसरल ब्लड वेसल, वहां पे डिस्कस्ड है. इनसे जो ब्लड वेसल ट्रांसफर करता है डोर्सल ब्लड वेसल में, उनको हम लोग कोमिसरल बुलाते हैं. ये एरो कोमिसरल को रिप्रेजेंट कर रहा है. हेल्प्स इन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड डोर्सल ब्लड वेसल हेल्प्स इन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्योंकि स्किन मॉइस्ट, डोर्सल ब्लड वेसल बाहर छोड़ेगा क्या, CO2, और बाहर से अंदर लेगा क्या, O2. ठीक है. वेंट्रल ब्लड वेसल इसको बुलाया था. इट डज नॉट हैव एनी वेल्व. क्यों चाहिए, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है. यहाँ पे हार्ट का पंपिंग फोर्स जो है, वो पंपिंग फोर्स यहाँ पे ब्लड को ड्राइव करेगा, मूव करेगा. यहाँ पे वेल्व का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैकफ्लो का चांस नहीं है. लेकिन वेंट्रल ब्लड वेसल में जब ब्लड मूव करेगा, मूव करके बॉडी के कोने कोने तक जाएगा, ऑक्सीजन देगा, CO2 लेगा. ऐसा करने के बाद जब ये वापस ब्लड घूम के डोर्सल में आएगा, तब तक तो ब्लड का जो पुशिंग प्रेशर है वो तो बहुत कम हो चुका होगा ना. ठीक है. ब्लड जितना मूव करेगा, वो जो पुशिंग प्रेशर है हार्ट का, ये दोनों हार्ट जो पुश करके ब्लड को निकालेगा, वो पुश की वजह से वेंट्रल ब्लड वेसल में ब्लड मूव करेगा. मूव करके बॉडी के कोने कोने में जाएगा, ऑक्सीजन देगा, CO2 लेगा. फिर ये ब्लड जब घूम के डोर्सल में आएगा और डोर्सल से मूव करेगा, तब तक तो ब्लड का वेलोसिटी बहुत कम हो चुका होगा. इसलिए डोर्सल में वेल्व है जो ब्लड को पुश करेगा, पुश करके आगे 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 ले आके हार्ट में घुसा देगा. लेकिन हार्ट से जब ब्लड निकलता है, तब हार्ट ने नया प्रेशर मारा है, नया पुश मारा है, उसमें तो ऑलरेडी बहुत वेलोसिटी होगा ना ब्लड का, तो वेंट्रल में वेल्व नहीं चाहिए. रिसीव्स ब्लड फ्रॉम पल्सेटाइल हार्ट. ये लेटरल ओसोफेजियल एंड लेटरल हार्ट को हम लोगों ने पल्सेटाइल हार्ट कंसीडर किया था ऊपर. runs the blood from anterior end to posterior end. ठीक है. एंड इज द मेजर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल, एंड इस वेंट्रल ब्लड वेसल को हम लोग मेजर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल कंसीडर करते हैं, क्योंकि साब ओसोफेजियल सिर्फ एलिमेंट्री कैनल को देता है, साब न्यूरल सिर्फ नर्वस सिस्टम को ही डिलीवर करता है. इन दोनों को छोड़ के बाकी बॉडी का हर पोर्शन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना काम है वेंट्रल का, इसलिए इसको मेजर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल बोला गया है. तो यहाँ पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ऐड किया है, जैसे कि ब्लड ऑफ अर्थवर्म इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड प्लाज्मा एंड कलरलेस ब्लड कॉर्पस्कल, जिसको हम लोग फेगोसाइट्स भी बुलाते हैं. तो ब्लड में पानी है, ठीक है. उस पानी में कुछ कुछ प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, ये सब डिजॉल्व है, उसको हम लोग प्लाज्मा बुला रहे हैं. एंड कुछ ब्लड कॉर्पस्कल्स माने कुछ ब्लड सेल्स प्रेजेंट है जो है कलरलेस टाइप का. ठीक है. हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट. Hb माने हेमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग Hb लिखते हैं. इज प्रेजेंट डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा. ये जो प्लाज्मा है, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन इस प्लाज्मा में ही डिसॉल्व्ड है. हमारे में हेमोग्लोबिन प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं है. हमारे में हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इनसाइड RBC, है ना. लेकिन इनमें जो हेमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है. इट गिव्स द रेड कलरेशन टू द ब्लड. ठीक है. जिसके वजह से हेमोग्लोबिन, इट इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन. हीम इज, है ना, हीम एंड ग्लोबिन. जो हीम है वो हीम क्या है, इट्स एन आयरन पार्ट दैट इज Fe2 पॉजिटिव. एंड ग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है. ठीक है ना. तो ये आयरन क्या कलरेशन देता है, रेड. प्लस ये हेमोग्लोबिन रेड कलरेशन तो देता है ब्लड को, प्लस इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन एंड CO2 इन द बॉडी एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. ब्लड ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स जो हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है एंड ये कलरलेस ब्लड कॉर्पस्कल का प्रोडक्शन करता है, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट बुलाते हैं. दिस सेल्स डज फेगोसाइटोसिस, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज फेगोसाइट्स. अच्छा, ब्लड ग्लैंड्स क्या है, सम स्मॉल रेड कलर्ड फॉलिकुलर बॉडीज. ठीक है. इरेगुलर स्कैटर्ड फॉलिकुलर बॉडीज प्रेजेंट इन द सेगमेंट्स 4th, 5th एंड 6th में एलिमेंट्री कैनल का फेरिंग्स भी था. फेरिंग्स के आसपास, फेरिंग्स का नाइबर है ब्लड ग्लैंड्स. ठीक है. lying above the pharyngeal mass are known to produce blood corpuscle. ये blood corpuscle is nothing but leukocytes. ठीक है. जो है WBC. ठीक है. जो है ये फेगोसाइट, बिकॉज ये फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करता है ये ल्यूकोसाइट, इसलिए फेगोसाइट भी बुलाया है. एंड हेमोग्लोबिन. ठीक है. ये दोनों का प्रोडक्शन ये ब्लड ग्लैंड करता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेस्पिरेशन. लेकिन रेस्पिरेशन और क्या डिस्कस करूं, वो तो सर्कुलेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है रेस्पिरेशन, है ना. अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, ऐसे करके हम लोगों ने डायग्राम बनाया था किसका, डोर्सल ब्लड वेसल का. तो ये जो डोर्सल ब्लड वेसल है, ये डोर्सल ब्लड वेसल में
कोमिसरल ब्लड वेसल क्या पास करता है? ब्लड पास करता है। ये ब्लड को कौन पास कर रहा है? कोमिसरल वेसल, ठीक है। एंड ये कोमिसरल वेसल जो है, ये कोमिसरल वेसल जुड़ा हुआ है किससे? वेंट्रल से। और किससे? साब ओसोफेजियल से। और किससे? साब न्यूरल से। ये सबसे ब्लड को कलेक्ट करके इधर भेजता है। ये जो ब्लड है, इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन जब यहाँ पहुंचता है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या बाइंडेड रहता है? CO2। डोर्सल ब्लड वेसल के ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्किन, जो कि है मॉइस्ट। स्किन के बाहर यहाँ पे है क्या? आउटर एटमोस्फियर। तो ये जो आउटर एटमोस्फियर है, इस आउटर एटमोस्फियर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अराउंड 154, ठीक है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3 mmHg, ठीक है। PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आउटर एटमोस्फियर। यहाँ पे जो ब्लड पहुंचता है, ये जो ब्लड यहाँ पे पहुंचा, ये जो ब्लड यहाँ पे डोर्सल ब्लड वेसल में पहुंचा, कोमिसरल ब्लड वेसल ने जो डिलीवर किया, जो वेंट्रल साब ओसोफेजियल एंड साब न्यूरल से आ रहा है, इस ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 40 है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 45 है। तो जब ये ब्लड यहाँ आएगा, ठीक है, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या होने वाला है? वी नो दैट गैसेस टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू अ हायर पार्शियल प्रेशर टू अ लोअर पार्शियल प्रेशर। तो जैसे ही ब्लड इधर पे आएगा, जैसे ही ब्लड इधर पे आएगा, इस ब्लड से आउटर एटमॉस्फेयर में क्या निकलेगा? CO2। क्यों? क्योंकि इस ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 45। और बाहर कितना है? 0.3। तो 45 से 0.3 में CO2 मूव करेगा। एंड बाहर जो गैस है आउटर एटमॉस्फेयर का, उसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 154 और ब्लड में 40। तो 154 से 40 के तरफ क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। एंड ये जो CO2 निकला, ये CO2 किसको छोड़ के निकला? हीमोग्लोबिन को छोड़ के निकला। ये जो ऑक्सीजन आया, ये आके किसके साथ बाइंड करेगा? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। ये एक्सचेंज होने के बाद ये जो ब्लड है, ये ब्लड क्या हो जाएगा? ये ब्लड जो यहाँ पे पहुंचा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसमें ऑक्सीजन कम था। यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाया स्किन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये होने के बाद यहाँ का ब्लड क्या ब्लड बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें अभी ऑक्सीजन ज्यादा है। और अगर तुम लोग पूछो सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर बोलिए, ठीक है, ये जो ब्लड है ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये जो एक्सचेंज के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, ये एक्सचेंज के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल कम डाउन टू 40, क्योंकि CO2 निकला। देखो यहाँ से जो ब्लड आया था उसमें CO2 कितना था? 45, लेकिन CO2 बाहर निकला, इसलिए CO2 कम हो गया, ठीक है। एंड ऑक्सीजन अंदर आया, तो यहाँ पे जो ब्लड आया था ऑक्सीजन कितना था? 40। ऑक्सीजन अंदर आया, कितना हो गया? 95। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर घुसेगा? पल्सेटाइल हार्ट में घुसेगा, और पल्सेटाइल हार्ट पंप करके इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजेगा वाया वेंट्रल, साब ओसोफेजियल, साब न्यूरल। सेल के पास जाएगा, सेल को ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा, फिर से डीऑक्सीजनेटेड बन के डोर्सल में आएगा। एंड यहाँ पे करेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आज 3 सिस्टम डिस्कस किया है। बहुत गर्मी है, इसलिए मैं अभी और कंटिन्यू नहीं करूँगा, या कर भी नहीं सकता हूँ, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट वीडियो में 3 सिस्टम पड़ेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आएगा नेफ्रीडिया, वो भी पढ़ाए हैं ऑलरेडी तुम लोगों को। फिर सेंसोरी सिस्टम थोड़ा सा डिस्कस करना है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक वीडियो में करने का मन है, तो ये वीडियो आज यहाँ पे रखता है। फिर आई थिंक और 2 वीडियो बनेगा आर्थवॉर्म का। एंजॉय।